today we are going to start with chapter number 6, keeping safe. ठीक है, in this chapter we will learn about some safety rules and first aid. We all need to follow basic safety rules to avoid accidents. Staying safe is as important as staying healthy. Staying safe is as important as staying healthy. ठीक है. Hot things that can burn you if you touch. Look at the picture and circle 5 things that are hot. ठीक है, इसमें जो चीजें हॉट है, गर्म है, उनको आपको सर्कल करना है. ठीक है. Now be safe. Accidents usually occurs when we are careful. We are not careful. Although accident can occur anywhere, anytime. But we can avoid accident not only being careful and alert. Staying safe is important as staying healthy. They guards against accident. ठीक है, अगर आप सेफली नहीं रहेंगे, it can cause accidents and accidents may occur anytime, anywhere. So you should always remain alert. It is important to prepare ourselves for basic safety steps in the event of an emergency. There are certain rules of safety that we should observe. यहाँ पे कुछ safety rules हैं जो हमें observe करने चाहिए. First is be safe at school. हमें स्कूल में कैसे सेफली रहना चाहिए. You spend a lot of time in a school. It is your second home. It is very important to follow few simple safety rules at school. देखो, आप सबसे ज़्यादा टाइम घर के बाद जो सेकंड होम है आपका वो स्कूल है. आप सबसे ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड कर दो. तो अब मैं आपको कुछ सेफ्टी रूल्स बताऊंगी दैट यू शुड फॉलो. डू नॉट कैरी ब्लेड्स टू शार्पन योर पेंसिल. यू मे एक्सीडेंटली कट योर फिंगर. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर. Some might fall down and get hurt. Do not throw object anyone as you might hurt someone. देखो, आपको अपना शार्पनर को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट मे हर्ट यू और योर फिंगर मे बी कट. ठीक है, आपको जब भी आप स्कूल में लाइन में कहीं जा रहे हैं तो आपको क्यू में खड़ा होना चाहिए. यू शुड नॉट पुश अदर. ठीक है, और किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ थ्रो नहीं करनी चाहिए. उससे क्या हो सकता है, दूसरा इंसान हर्ट हो सकता है. Now be safe at home. Keeping your room neat and clean with your bags and toys in the right place or someone might trip over them and get hurt. देखो, घर पे आपको अपना सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. हो सकता है कोई जा रहा हो वो गिर जाए, फिसल जाए, इसलिए उसको आपको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. Do not wear loose nylon clothes in the kitchen. They may catch fire. आपको लूज नायलन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए while you are working in the kitchen because it may cause fire. उससे आग लग सकती है. If you keep broken toys and play with them, you might cut your finger. ठीक है, broken toys से नहीं खेलना चाहिए. हो सकता है कहीं जब आपकी फिंगर वगैरह कट हो जाए. Stay away from gas stove. Do not touch anything that is on the gas stove as you may get burn. ठीक है, जो गैस स्टोव से थोड़ा दूर रहना चाहिए और गर्म चीजों को छूना नहीं चाहिए. हो सकता है आप जल जाएं. Do not try to repair everything. Do not touch electric wires and sockets. You might get a electric shock. Electric wires और socket को टच नहीं करना चाहिए. हो सकता है आपको करंट लग जाए. Knives are sharp. Never use the knife. Never try to use a knife or to cut or chop something. देखो, जो नाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, इसलिए आप लोगों को उसका यूज नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज़ काटने के लिए. Do not play out on the terrace or balcony. Do not leave the soap and shampoo on the toilet or bathroom floors. You or someone may else may slip over it. आपको बाथरूम में या टॉयलेट में शैम्पू या सोप को स्प्लिट करके नहीं छोड़ना चाहिए. हो सकता है आप फिसल जाए तो दूसरा कोई और वहाँ बात करने जाए तो वो फिसल जाए. Now be safe on road. रोड पे चलते हुए हमें कैसे सेफली चलना चाहिए. Always cross the road on zebra crossing. Whenever possible use subways to cross the busy road. ठीक है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए और जब भी रोड बहुत ज्यादा बिजी है आपको सबवे का यूज करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट और पेडेस्ट्रियंस इज ग्रीन. आपको जब भी क्रॉस करना चाहिए जब लाइट क्या हो, ग्रीन हो. बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर. जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं पहले आपको अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट and then again right and cross the road. Do not run on the road. Always walk on the footpath. ठीक है, भागना नहीं चाहिए रोड पे और हमेशा कहाँ पे बैठना वॉक करना चाहिए, फुटपाथ पे. Walk on the right side of the road so that you can see the traffic come. आपको हमेशा राइट साइड पे
वॉक करना चाहिए या मूव करना चाहिए, क्योंकि आपको उससे क्या होता है, ट्रैफिक दिखाई देता है। नेवर ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस, यू माइट फेल। कभी भी चलती हुई बस से ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। हो सकता है कि बस बहुत तेज चल रही है और आप गिर जाएं। नेवर टेक योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस, यू माइट हर्ट यू योरसेल्फ वेरी बैडली। आपको अपना हेड या हैंड वगैरह कुछ भी चलती हुई बस से नहीं निकालनी चाहिए, हो सकता है आपके चोट लग जाए। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, by not following rules you may get seriously hurt. The car, buses, scooters always move at great speed. When the traffic light is green for them, keep the distance from them. ठीक है, बेटर बी सेफ देन सॉरी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन बसेस बहुत तेज चलती हैं। ठीक है, हो सकता है वो इतनी तेज स्पीड पे हो, जैसी लाइट ग्रीन होती है आपने देखा होगा सब बहुत तेज व्हीकल निकलते हैं अपना। ठीक है, इसलिए आपको देख के चलना चाहिए, वो भी आप क्या कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। What do you understand by the following traffic sign? ये कुछ ट्रैफिक साइंस हैं। ठीक है, आपको ये करना है, फिल करना है अपने आप। फर्स्ट एड इज हेल्प टू गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ एन एडल्ट और अ डॉक्टर। इफ द पर्सन इज नॉट हर्ट बैडली, सिंपल फर्स्ट एड हेल्प। अगर पर्सन बहुत ही ज्यादा बैडली चोट लगी हुई है, डॉक्टर से पहले हमें उसे क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए, जिसकी थोड़ी बहुत चोट है वो कम हो जाए। Now first aid for our cuts and wounds. You must wash your hands before attending to the injured person, as you might pass on germs from your dirty hands to him. It is very important to wash the cut or wound under running water, which helps them to remove dirt from the wound. After washing the wound, gently apply antiseptic cream or lotion. देखो, आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे तो पहले आपको अपना हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि जो आपके हैंड्स के जम्स है हो सकता है उसकी चोट पे चले जाए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जो उसकी चोट है उसको रनिंग वाटर से धोना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर वॉशिंग इट विद द रनिंग वाटर, उसके जो जर्म्स वगैरह वो हट जाएंगे। देन यू हैव टू पुट एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। इफ द कट इज डीप, टाई अ बैंडेज। फॉर अ स्मॉल कट यू कैन पुट अ बैंडेड। लेट द पर्सन रिलैक्स विद द टिल एन एडल्ट और अ डॉक्टर कम। ठीक है, अगर आप क्या करें, उसको बैंडेज लगा दें, और अगर बहुत ही ज़्यादा कट डीप है, जब तक दूसरा डॉक्टर या कोई एडल्ट ना, उस पर आप बैंडेड लगा दें। ठीक है, इफ समबडी हैज अ फ्रैक्चर यू कैन जज इट विद द स्वेलन पार्ट। डू नॉट लेट द फ्रैक्चर्ड पार्ट हैंड डाउन, टाई इट विद सम लॉन्ग क्लोथ एंड गिव सपोर्ट टू इट। देखो, अगर फ्रैक्चर हो गया तो आपको कैसे पता चलता है, जब आपका कोई पैर सूखने लग जाता है। ठीक है, उसको कभी भी नीचे की तरफ लटका के रखें, उसे क्लोथ से बांध के रखें। To cure a burn, you cool it with a cool running water or ice. Put some ointment, Bernol or Silverex on the burn. अगर आप जल गए हैं तो आप ठंडा पानी लगाइए, आइस का यूज करें, वरना सिल्वर एक्स का या बर्नॉल का यूज कर सकते हैं। If a sick person has a high temperature or high fever, make him lie down on a flat surface. Put a wet cloth on his forehead and call the doctor at once. अगर आपको बुखार है, बहुत तेज हाई टेम्परेचर है, आपको नीचे लेट जाना चाहिए और वेट क्लोथ से पट्टी जो होती है सर पे रखते हैं, देखा होगा मम्मा लोग भी रखते हैं। ठीक है, और आपको डॉक्टर को फिर कॉल करनी चाहिए। डू नॉट पैनिक योरसेल्फ व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन। कीप काम एंड टेक केयर ऑफ द इंजर्ड पर्सन इज ऑल्सो काम। अपने आप भी आप काम रहिए, जो पर्सन जो इंजर्ड है उसको भी फिर वो भी क्या करेगा, काम ही रहेगा। उसको भी फिर एक कहते हैं ना कि इंसान घबरा जाता है, वो घबराएगा नहीं। ठीक है, hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.